Hello and welcome to the DP World Dressing Room. I'm Fakhri Alam. You're watching 10 Sports, our live and exclusive coverage of the ICC Champions Trophy. And the situation in the Champions Trophy is that New Zealand and India have already qualified for the semi-finals. So congratulations to both the teams. And now the other two spots are up for grabs. We'll find out more about that. A big game coming up today. This is how it's going to go down. Today we have from Rawalpindi live. It's Australia versus South Africa. बराह रास्त आपके लिए गेम लेकर आनी है, but the news is that the weather is a little questionable. कुछ पकौड़ों वाला मौसम हुआ है इस वक्त. Before we get cracking on this conversation, there you have those images coming out. Not looking good, but definitely पकौड़ों वाला मौसम हुआ है. And we're going to talk all about it. But before we do, let me bring in my four very special friends, guests that I have here in the DP World Dressing Room. First up, he represented India. Was a fantastic off-spin bowler, down the order batsman, pinch hitter, a great broadcaster, and great to have him here. Nikhil Chopra. Nikhil, welcome. Good afternoon. Good afternoon, sir. Looking very nice. Fashion style कम हो गया, fashionista बोलना बंद कर दिया आपने. Fashion तो आपका fashion के. In fact, you know, I was looking. कल हमसे कुछ questions मिस हुए हैं आपके fashion के हवाले से. आज I'll take some more questions about your fashion today, right? All right, next up, I've got the legend himself, the toe-crushing, batsman terrorizing, golf-swinging Nolakha of the DP World Dressing Room, our dear friend, Mr. Waqar Younis, Urf Razia. Good afternoon, Waqar. Good to have you here, man. Like, hello, sir. अभी तक दर्द हो रहा है आपको? हो चुका कल रात को bouncer आपने miss किया है यहाँ पे. I have recovered the neck issue, but I've not recovered from the trauma, the trauma that you were subjected to. Yeah. Waqar Younis yesterday was subjected to trauma by my next guest, cricket royalty himself. Without question, absolutely the greatest all-rounder the game has seen. And just to put that on the record out there. Ladies and gentlemen, he is swinging, he is Sultan, he is the man. कलाकार, अदाकार, बैंकर, रैपर और आज पीले चश्मों में ऑस्ट्रेलिया की सपोर्ट में ससुराल की खिदमत में वसीम अकरम. Wasim, you know those glasses. Look at those glasses with that background. Look at that. Good afternoon. Assalamu alaikum. Thanks to Harbhajan Singh. Beautiful, beautiful. It's all the way Aussie, He's Aussie, shining Aussie, too isn't much. It? Aussie, all the way. Yeah. Oi, oi, oi. Yeah, shining too much. चाहे बारिश हो, चाहे तूफान आए, चाहे ज़लज़ला आए, मैं ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करना है. थोड़ी कोई चॉइस कोई नहीं. हालात ऐसे हो गए. But you're shining too bright for my liking. Those glasses are now giving me a complex. Oh my God. पर तुसी लग रहा है डस्के तो अखा बना के आए हो. ऐसे ही है. Deska was an old city. It's a city in just outside Yeah, you're not Sialkot. supposed to talk till I introduce the person. Please stop ruining the program. सारी स्टोरी की ऐसी तैसी कर रही है यार. Let me fix that. That's the DP World logo. We must fix that problem. लोगों ने इसके बारे में पूछा है. ये क्या है? ये एमिरेट्स का झंडा है. एमिरेट्स के झंडे के कलर झंडे हैं के कलर वही हैं, बट ये डीपी वर्ल्ड का लोगो है, Looking guys. nice. Very nice. Very nice. Thank you. चलना. All right. Okay, next up, and another royalty on this table. We're very, very fortunate to have him. He represented India with great pride, won a lot of games for India, and has been absolutely fantastic ever since he joined the DP World Dressing Room. We have Ajay Jadeja. Ajay Paji, good afternoon. Good And afternoon. Good afternoon. It's a wonderful day और आपने याद करा दिए पकौड़े सवेरे सवेरे. अरे भाई. पकौड़े कहाँ हैं? क्योंकि इस मौसम में पकौड़ों के अलावा और कुछ नहीं है. और मौसम यहाँ भी दुबई में भी एग्जैक्टली वैसे ही है ऐसे ही जैसे है. पिंडी में है. Absolutely. बाहर देखो तो बारिश भी हो रही है. जी हाँ, हमारे यहाँ दुबई में भी आज बारिश हो रही है इस वक्त, which is unusual, but it is actually raining. And आप डस्के की कहानी बता रहे थे. डस्का बड़ी हिस्टोरिक सिटी है पाकिस्तान में. वहाँ पे 70s में भी आई एग्जैक्टली डोंट नो. ठीक ना कर देना मैनू. बट गलतियाँ निकालने तो बैठे होते हैं ना सारे. सो जब हम यंग थे तो वो किसी की आंख खराब होती थी तो उसे कहते हैं डस्के जा. वहाँ पे बड़ा फेमस आई हॉस्पिटल होता था. सो दैट्स व्हाई यू लुक लाइक अभी भी है. तो अखा बनवा के आए हैं. अजय भी है. है मस्ट बी. ये तो ही आया. वो कहते हैं ना पंजाबी में, वो अब सेइंग थी, सदके जावा के डस्के जावा. हाँ, सदके जावा के डस्के जावा. All right, folks, yesterday was another game right here in Rawalpindi where it is looking a little gloomy. It was Bangladesh taking on New Zealand, and New Zealand looking unstoppable at this time and stage. They feel right at home in these Pakistani conditions. This is how it went down. To bring the scorecard up on your screen, it was Bangladesh that were put into bat by New Zealand. और ये था जनाब score. It was
An okay batting effort by Bangladesh. They could have scored at least another 30-40 runs and could have been a different game altogether and could have put New Zealand under some pressure. But look at that, New Zealand bowling figures and especially Brestwell. And of course, let's take a look at how the New Zealand batters went about their business. It's just great the way they are playing at the moment. And New Zealand winning that one by 5 wickets and basically cementing their place in the semi-final. It's going to be very interesting. Let's take this discussion back to the semi-finals. The very first day, Jadeja bhai, when you joined, Jatupaji, I asked you who are your semi-finalists. And today is another big game because this will also tell you, especially what we saw in the England-Australia game. Today's game is also very, very important, but I don't know if we're going to have a game or not. We'll talk about that. But now, if you look at the way the contest is right now, who do you think are your 4 semi-finalists? The other 2 semi-finalists. Yeah, I think these two, I somehow feel these two will also make it from that side. For a simple reason, of course, past is something that you look at and learn. Look at what South Africa did to Afghanistan. Afghanistan is a team that a lot of people thought will also make it. They destroyed them. I mean, they literally destroyed them. Yeah. They were not a match on that day. Shows you how South Africa is looking at this tournament, what kind of depth that they have, whether it's bowling or batting. Yeah. So they look stronger to me, of course. Australia, I thought were probably, not as good, or, you had a lot of new faces, how they're going to go about. They'd gone back to their old captain, who I think is a wily old fox. So they are on the other side. England, I don't think, because and especially after that defeat that they had, they put on 351, if I'm not mistaken, क्योंकि गलतियां पकड़ी जाती हैं आंकड़ों में. तो उसके बावजूद जिस आसानी से इन्होंने उस स्कोर को चेज किया, वो आपको दर्शाता है कि टीम किस माहौल में, किस हालात में. हालांकि इंग्लैंड पूरे अपने प्रॉपर फास्ट बॉल, जोफ्रा आर्चर, वुड, विद पेस यू टॉक अबाउट, तो अच्छी टीम को उन्होंने इतनी आसानी से हराया और साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को इतनी आसानी से हराया. तो मैं प्रिज्यूम करता हूं कि ये दोनों ही आपको सेमीफाइनल में दिखेंगे. आज तो एक ही जीत पाएगी इनमें से, लेकिन फिर भी पहुंच जाए. आई थिंक एक और चीज भी टीम्स की फेवर में जो नहीं गई है ना, वो ये है कि जैसे अफगानिस्तान आई थी ना, अफगानिस्तान इज हैवीली रिलाइंग ऑन देयर द ट्रिकी स्पिनर्स एंड ऑल दैट ना, वो उनको उस तरह की पिच नहीं मिली. उनको ऐसा लग रहा था जैसे ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की पिचेज हार्ड पिच मिली, तो उनको वो नहीं मिली. जब पाकिस्तान जो डिपेंड कर रहा था पेसर्स पे ज़्यादा, पाकिस्तान को बिल्कुल ही स्पिनिंग ट्रैक मिल गया. तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा हुआ है. आई मीन पिचेस हैव बीन लिटिल बिट इनकंसिस्टेंट. अगर एक जगह की एक ही तरह की पिच नहीं, अगर कराची में एक पिच को देखा जाए तो वो स्पिन हो रहा था जो न्यूजीलैंड वाला मैच. विक्की, सॉरी टू कट यू, उसकी रीजन हो सकती है कि आईसीसी के ग्राउंड्समैन गए हुए, मे बी दैट्स व्हाई, बिकॉज हमने पिंडी, कराची, लाहौर में लाहौर में तो फ्लैट विकेट थी. इवन कल पिंडी की विकेट बड़ी डिफरेंट थी. बॉल बैठा भी है, टर्न भी हो, यूजुअली हमने कभी देखा नहीं, स्पेशली वाइट बॉल में फ्लैट ही देखी है हमने. ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग था मेरे लिए. वो इसलिए कि पिंडी में कोई ऐसा कोई खास क्रिकेट अभी रिसेंट पास में हुई नहीं है. सो आई वाज एक्सपेक्टिंग द पिचेस टू बी लिटिल बिट मोर फ्रेश, कि जहाँ पे गेंद बल्ले में बेटर आ रहा था. ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ख़राब पिच थी, ऐसा भी नहीं था. लेकिन जिस तरह की हम पिंडी की पिच को जानते हैं या देखा है पहले कि हिट थ्रू द लाइन वाली पिचेस होती हैं, वो पिच हरगिज़ नहीं थी. कोई ना कि आई डोंट नो, आई मीन हार्ड टू पिक के जी आईसीसी का ग्राउंड्समैन है या कौन है मुझे नहीं मालूम है. लेकिन ये है कि ऑफ कोर्स जो लोकल ग्राउंड स्टाफ है वही काम तो वही कर रहा है. अगर कोई गया भी है आईसीसी से तो वो ऊपर का बड़ा बंदा ये ग्राउंड्समैन को वही हिसाब होना है. सॉरी निखिल, वो जो कई दफ़ा हम बात करते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कोचेज हैं. एक हमारे टेस्ट क्रिकेटर बड़े ज़बरदस्त हर जगह कोचिंग कर चुके हैं. आई थिंक इनको पता है, उनका नाम नहीं मैं लूँगा. इंडिया में थे, इंग्लैंड टूर कर रहा था, तो इंग्लैंड के साथ हमने गिने 17 के 18 है वो थे कोचेज प्लस स्टाफ, प्लेयरों से ज़्यादा वो थे. तो इन ब्रेक वो सारे कोचेज नीचे आ गए, ये कोच भी नीचे आ गया. मैं कहा तू क्या बता रहा है? कह रहा है भाईजान काम करना पड़ना है, नहीं तो समझन के मैं काम नहीं कर रहा. सो फॉर द सेक ऑफ इट यू माइट बी गिविंग देम रैंडम इंस्ट्रक्शंस द ग्राउंड्समैन. हालांकि अगर उन पे छोड़ देता तो शायद फ्लैट विकेटें बना दे, बिकॉज बनाते हैं, उन्हें पता है कैसे बनानी है. भाई आई थिंक ये मुझसे भी कितनी बात कर यार तू ना ले. बट द ब्यूटी अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी, इतना बड़ा टूर्नामेंट जब भी होता है भाई, हर टीम अपने ना 15 बंदे इकट्ठे करके जाती है टू सी एक तरीके की विकेट के. तो यू शुडंट बी एक्सपेक्टिंग
Yeah. Yeah. कि यू हैव टू बी कवरिंग ऑल योर बेसिस कि आप कितने फास्ट बॉलर लेके चल रहे हो, कितने स्पिनर लेके चल रहे हो, कौन से प्लेयर का क्या रोल रहेगा. सो आउट ऑफ सिलेबस वाला जो सिस्टम रहे ना, वो नहीं होना चाहिए. सो आई फील देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द सिलेक्टर्स टू ऑल्सो लुक टू कवर ऑल योर बेसिस. लेकिन इस पे फिर वो डिबेट शुरू हो जाती है ना, जो कल हम कर रहे थे. भाई या तो इतनी बदमाशी रखो हमारी तरह हाँ, कि हम यहीं exactly, खेलेंगे. exactly. वही बोलने लगा था कि कल जो डिबेट हम कर रहे थे यहीं पे ही कि एक्चुअली वो क्वेश्चन आया था कि क्या उनको मिल रही है, एंड देन वसीम यू सेड कि नहीं, आई डोंट थिंक सो, बट नाउ देयर इज अ होल कन्वर्सेशन दैट इज नासिर हुसैन ने भी कहा है, माइकल एथरटन ने भी कहा है, इन्होंने ये पहले क्यों नहीं कहा जब ये डिसाइड कर रहे थे. अब तो इट्स टू लेट. Yeah. The decision has been made. Yeah. सो ये चीजें करने वाली हैं. टूर्नामेंट से पहले प्रोटेस्ट करना है, अगर आपने जो भी आर्टिकल लिखने हैं. मेरा ख्याल है वो इन्होंने देखा अपनी टीम की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया से पिटने के बाद उनका होना है, प्रोटेस्ट शुरू कर दी. हाँ वही अब ठीक है, एडवांटेज है, बट दिस इज अब वो चेंज नहीं हो सकता ना. नहीं नहीं, और ये तो पहले अग्री करती हैं. आई थिंक कमिटीज बैठती हैं, Yeah. यू नो, यही- टूर कमेटी that's what- होती that's what Wasim है. is दोज saying. आर द पीपल, यू नो, जैसे हर चीज में हम बाद में आते हैं, जो पहले अपॉइंट हुए हैं बंदे उस काम को देखने के लिए, अगर वही आपका सवाल ना उठाएं या उनको नहीं लगता कि ऑड है, तब जाके अग्रीमेंट होती होगी. और या ऐसा होता होगा, या फिर ऐसा है कि आईसीसी बोलती होगी ये है भाई, ऑन द टेबल आना है आओ, नहीं आना नहीं आओ. Yeah. बट आई एम विद निखिल के यार, वी गॉट टू एक्सेप्ट. Yes, You know, yes. और हर जगह अलग पिचेस होती हैं. यही तो इस गेम का मजा भी है कि आप क्या अडेप्ट कर सकते हैं, क्या यू नो उस कंडीशन में क्या जरूरत है, क्या वो आप इतनी जल्दी अपने आप को बेहतर कर पाते हैं. वो बात दुरुस्त है कि आपको आपके पास जो 15 हैं निखिल, वो ऐसे होने चाहिए कि जो हर कंडीशन में. लेकिन मेरा कहने का मकसद ये था कि एक ही ग्राउंड पर एक ही स्क्वायर के ऊपर दो तीन जमीन आसमान वाला फर्क वाली वो होता नहीं है, नॉर्मली नहीं होता. हमारे यहाँ लाहौर, कराची, पिंडी की जो पिचें हैं ना, लाहौर की बहुत फ्लैट है. उस दिन कहानी भी सुनाई थी कि जी जहाँ से जिस तरह बैटिंग की, पिंडी की भी ऐसी विकेट होती थी. Yeah, I know. और कराची की शायद थोड़ी सी ट्रिकी होती थी, लेकिन कराची की बहुत ही तेज निकली विकेट. दैट इज व्हाट आई मेंट. नॉट कि मैं यहाँ तारीफ पे मतलब बीसीसीआई की बात कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज हमारे यहाँ जो बदली है, क्योंकि ये हम लोग को आदत है ना, हम कहते हैं कि वहां जाते हैं तो ऐसी पिच होती है. Yeah. पिछले कुछ सालों से उन्होंने क्या करना शुरू किया है कि जो स्क्वायर है 8 पिचेस का होता है या 10 जितनी होती हैं, उसमें आधी आधी ना उन्होंने, जो एक नेचुरल होती है, कहीं पे काली मिट्टी होती है हमारे यहाँ, और यू नो गो डाउन साउथ थोड़ी लाल होती है जहाँ बाउंस होता था. अब उन्होंने स्क्वायर्स जब बनाते हैं, अब क्योंकि आर्टिफिशियली बनते हैं, तो उन्होंने आधा स्क्वायर रखा हुआ है लाल मिट्टी का, और जो ओरिजिनल है वो एक तरफ छोड़ देते हैं. मिक्स भी किया होगा दोनों वो का. अपने आप फिर एक मिक्स, बीच वाली मिक्स हो जाती हैं. Yeah. सो जो बड़े भी हो रहे हैं बच्चे, जब अपने ग्राउंडों में खेलते हुए बड़े हो रहे हैं, तो सिर्फ एक कंडीशन के लिए तैयार नहीं हो रहे. जो ना कभी इधर खेल लेते हैं, कभी इधर खेल लेते हैं, तो वो इवेंचुअली एज अ प्लेयर ग्रोथ आपकी बेहतर हो रही है. लेकिन हमारे यहाँ अभी काली लाल पीली दाल चक्कर नहीं है. जस्ट वन स्क्वायर इज बीन देयर फॉर लॉन्ग ਸਾਡੇ ਆ ਸਿਰਫ ਹੈ ਨੰਦੀਪੁਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਰ. नंदीपुर दी मिट्टी ते हाईवे दी तरह दी पिच की जिन्ना मर्जी जड़े खिंची जाओ. Let's take a look at the standings in this group. This is how the group is poised at this stage. This is on your screen now. You can see South Africa played one game and they've got their 2 points. Australia have played their one game and they've got their 2 points. England has played one, no points. Afghanistan. ऊपर की 2 ने नीचे 2 को हराया, बस सिंपल. बस मैं पढ़ रहा था. तू ਗੱਲ लंबी कर. Actually, I'm trying to give you guys. Okay, if you don't want, you talk. I have no issue with that. नहीं, ऊपर की 2 में से एक तो ऊपर ही रहेगी और दूसरी भी ऊपर ही रहेगी शायद, ऐसे ही लग रहा है, रन रेट ऐसे ही भी लग रहा है, ऐसे ही नहीं, लग ये रहा है. दोनों ही आएंगी सेमीफाइनल. यही दोनों आएंगी सेमीफाइनल. लगता है. इस दिन अफगानिस्तान इंग्लैंड को हाई उम्मीद कर रहे हैं, वो थोड़ी कल रात को जब हम इस मैच के बारे में बात कर रहे थे, तो आपने एक कमेंट किया था बड़ा इंटरेस्टिंग. रात के आपने comments कहा सवेरे ना कि करें. शायद इंडिया में इट विल नॉट गो डाउन वेल, बट यू सेड दिस इज अ वेरी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दैट दीस टू आर द फाइनलिस्ट्स एज वेल. I think so, because I think they are playing, you know, the kind of cricket. और एक होता है ना कि माहौल बना होता है टीम का, सेट हो रही है. आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, जो उनके मेन खिलाड़ी जिनकी आप वेट कर रहे थे, उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं है, उसके बावजूद इतना अच्छा 350 का चेज किया है. So there is still something that they can add to their side. And to South Africa, Klaasen probably make a comeback क्लासन today. अभी जो मेन जिसकी हमने 1 घंटे बात की थी, वो खेला भी नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने इतनी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दिखाई है. बॉलिंग जो उनका लगता था कि यार थोड़ा 19-20 होगी या कोई प्रॉब्लम होगी, वो उन्होंने कमाल का किया, 100 कुछ रन से हराया है. सो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये, और इन दोनों टीमों में
conditions don't apply. But Ajay, You know? one of these teams has to come and play against India in Dubai because India has already qualified for the semi-final. And जो एक advantage उनको आ रहा है जिस पे अब सब बात कर रहे हैं, they would be in home conditions. So I don't see that So it's if going to be I was fearing these two, इन दोनों में से किससे fear करो? हालांकि इंडियन टीम नहीं करेगी, मैं कर रहा हूँ. वो है साउथ अफ्रीका. I don't know why I feel South Africa at this stage is looking a side that has those And they have all ingredients the- that can question India much more than the Australians. But then again, फिर वो knockout stage है भैया. South Africa at knockout stage, come on. नहीं but वो सेमीफाइनल है ना. नहीं वो सेमीफाइनल फाइनल होता तो फिर अलग. All right. नहीं, वो it's basically knockout. उन्होंने बहुत सारे सेमीफाइनल भी हारे हुए हैं, याद रहे. ये याद रहे. They have South choked Africa many years. नॉकआउट जहाँ नॉकआउट का नाम लिखा जाता है ना, केओ आ जाता है, वो वहाँ पैर कांपना शुरू होते हैं. तो उनको ये लगता है कि नॉकआउट मतलब हमने आउट होना है. They should practice on Tekken knockout stages. With that, we're going to take a break right here at the DP World Dressing Room. But when we come back, there's more on the other side. Images coming out of Rawalpindi, not looking good. We ideally would like to see these teams clash. But let's see how it goes down. Stay with us. मरवान गए. Welcome back to the DP World Dressing Room, and these are live images coming out of Rawalpindi, where the officials are taking a look at the ground and the conditions, and it's not looking good at this time. The good thing is none of the umbrellas are open. The bad thing is that they are holding on to their umbrellas. drizzle हो रहा है, drizzle. Drizzle, drizzling, मतलब बूंदाबांदी जिसको उर्दू में कहते हैं. pakoras, maholas in full ashkans. Basically, that's how it is. तू आप पकौड़ा लग रहे हैं, रहने दे पकौड़े. And तले तो तुसी लग रहे हो पीले पीले. Good one. Thank you. Instinctive. Instinctive. Good try. Yes. That jab was just right, the right time at the right place. And ouch, it hurt. I'm just kidding. You look beautiful with the yellow. You do. You should be happy about it. मतलब It's उन्होंने उतार ही दिया, चश्मा नजर actually आता it's canary yellow. Pan It's canary Australia. हुए, पावे पनेरी हुए. It's canary yellow. It's Australia, the WACA, the GABA, the MCG, the SCG. पैन पासपोर्ट मिल गया? इन नहीं वड्डी. अले नहीं. केड़ा येलो? Canary. Canary. मानो निक्का तोता नहीं होता. निकात होता. Yellow रंग. ऑस्ट्रेलियन है. Stallion तोता. ऑस्ट्रेलियन. Stallion तोता. Talking about पीछे भी- stallion तोता. Sorry जी. नहीं मैं क्या वो शॉट वापस लाएं. पीछे भी पीला है. जी सिंगल शॉट. लो आया है स्पेशल. हैं? स्पेशल लो आया. आगे पीछे पीला ही पीला. Talking about Pila, Australia, the canary in yellow. Let's take a look at how they went down in the last game against England, which we were talking about. That chase was magnificent, Wasim. Australia winning that by 5 wickets. But look, England put up a stiff total, 351. And the reply from Australia, even with a few wickets here and there. 4 विकेटें गिर चुकी थी. And with not, some new players in there. It's just fantastic Short performance. is kind of newish. Carey is for last couple of years English. That was इससे पहले इसका 100 था वाइट बॉल में, वो भी डोमेस्टिक में. जी. और उसको इन्होंने चांस दिया जेक फ्रेजर मैगर्ग की जगह, और उसने फिर शो किया है कि वो है प्लेयर. किस तरीके से कंफर्टेबल, कोई मुश्किल नहीं लगा, और इतना बड़ा टोटल चेस कर रहा है. पैनिक नजर नहीं आया उसकी बैटिंग में और साथ में कैरी की बैटिंग में. जब अभी जड्डू बता सके एज ए बैटर, जब चेस करने जाते हो इस तरह का टोटल, इस तरह के मैच में कामनेस कितनी इंपॉर्टेंट है. कई दफा प्लेयरों में वो फुर्ती सी आ जाती है अननेसेसरी. ये बड़े काम थे मेंटली, उससे बड़ा फर्क पड़ता है. ना बिल्कुल फर्क पड़ता है. देखिए जो पहले बैटिंग और बाद की बैटिंग का फर्क क्या कह रहे थे कि वो आप वो टोटल को देखने लग जाते हो और आप अहेड ऑफ टाइम चले जाते हैं. तो वो फिर आप हमला दबड़ी करके गलती कर देते हैं जो बॉल नहीं होती तब. लेकिन इसकी पारी में कहीं लगा ही नहीं ऐसा कि इसने हमला दबड़ी की हो. एक तो क्या है कि बाउंड्रीज मिलती रही. अगर मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़े टोटल होते हैं, उसमें ग्राउंड भी है ना, आउटफील्ड जहाँ फास्ट होती है तो शायद प्रेशर कम आता है. छोटी आउटफील्ड होती है ना तो वो चौका कई बार मिलता नहीं है, तो वो बीच वाले टोटल ज्यादा मुश्किल है चेज करने. Jaddu bhai, one quick question on this. You saw that reverse scoop that he played. Unbelievable. Is there a drill to practice that shot? Because I keep hearing a lot of people asking, a lot of kids asking especially, well, how do I practice this shot? Or is this all about instinct? No, it is instinct, of course, because you got to read also कि कहाँ गिरने वाली है गेंद. Because humanly it's impossible once the ball is left in somebody's hand, even if it's a spinner. The time that it takes a bowler when, say, bowling at this pace or any pace, say 100 miles पकड़े आप, किलोमीटर. तो जो
time hai after the ball has been released to playing that shot. Humanly, it is impossible to react to it. Right. So you always have to preempt where roughly the ball is going to come. But वो instinct है, इसमें कोई doubt नहीं. But फर्क भी हो गया है ना. ये practice करते हैं इस चीज की. So क्या practice है इसकी? मैं आपको सिंपल बता देता हूँ. हमारी उम्र के जो होंगे क्रिकेटर्स घर पे और यहाँ, हम जब प्रैक्टिस करते थे, चाहे जूनियर हो, चाहे सीनियर हो, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट में आप खेल रहे हैं, अगर 10 मिनट एक नंबर लेता हूँ, आप बैटिंग कर रहे हैं नेट में, तो जब तक एक आवाज आती थी लास्ट राउंड, उस वक्त तक बैट्समैन की जो प्रैक्टिस है डे टू डे बचपन से लेके, वो था कि आउट नहीं होना, डिफेंस खराब बॉल मिली तब मारेंगे. आज की डेट में अगर कोई 10 मिनट प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो 9.5 मिनट वो सिर्फ अटैक कर रहा है ऑप्शंस, या वो रिवर्स स्वीप प्रैक्टिस कर रहा है, या वो इधर से मारने की कोशिश कर रहा है, और वो लास्ट राउंड होगा जब वो ऐसे करके ना लास्ट ऐसे खेल के जाता है. अच्छा. From somebody who's a 14-15-year-old all the way to 20, if he's played 100 balls, say I'm just putting a number, he's practiced hitting 95 balls or 98 balls versus a kid who's grown up defending 98 balls. How do you expect that kid to be good at playing these shots? Yeah. So this generation is growing up differently, they're practicing differently, and that is why this thing comes easy to them. और जब हम देखते हैं कि अरे यार ये सिंपल चीज क्यों नहीं हो रही, इसलिए नहीं हो रही क्योंकि 9.5 मिनट जो है ना 10 में से आपने जब प्रैक्टिस करी है कि डिफेंड नहीं होती, तो हम सिंगल सोचते थे. अब आप सोचते हैं हमारे दौर में हम एक दूसरे को थ्रो डाउन्स करते थे जी. यू नो, मैंने तुझे कर दी, तूने मुझे कर दी. बट अब तो स्पेशलिस्ट साथ जाते हैं जो थ्रो डाउन करते हैं. आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड राइट हैंड अराउंड द विकेट, ओवर द विकेट, तो उसमें ये ड्रिल की प्रैक्टिसेस करते और हैं. वो अब वो स्टिक भी आ गई है थ्रो डाउन वाली, एंड एक्चुअली मूव, यू कैन एक्चुअली कंट्रोल द स्टिक टू मूव द बॉल इन आउट एंड डू. जी बिल्कुल. अजय भाई आपने बताया कि यू समवेयर एंटिसिपेट आल्सो, सो एज अ बैट्समैन यू आर आल्सो अवेयर कि आप किस स्टेज पे हो, बॉलर ने फील्ड क्या सजाई है, तभी आप एंटिसिपेट कर पाते हैं कि भाई अगर आपके पास लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग और फाइनल लेग 30 यार्ड के दायरे में, सो यू आर एक्सपेक्टिंग मोर स्लोअर बॉल्स एंड मे बी यॉर्कर्स, तभी वो पैडल वाला. सो दैट इज आल्सो इट्स अ वे ऑफ trying to be ahead of the bowler. I think batting is instinctive and of course instinctive, but anticipation is a must because a human body has a limitation of the time that it gets to react. You know, a lot of people say, "Oh, I watched the ball," and then it is an instinct, and there is a फॉर्म और आउट ऑफ फॉर्म में एक ये भी तो फर्क होता है ना कि आप रीड वो ही कर रहे हैं उस तरफ. ये नहीं है कि पता ही आगे आएगी, बट 9 out of 10 times you get it right. That's when you're playing well. जब हम थे मिड 90s एंड लेट 90s में, तो ये शॉट अब सोच भी नहीं सकते कि आपने मारनी है. रिवर्स स्लैप की बात कर रहा हूँ मैं. कोचेस डांट देते थे. मैंने कोशिश की. हमारा एक गुजरावाला में प्रैक्टिस मैच था, राइट, पाकिस्तान टीम का. आपस में ही थे हम. आई डोंट नो गुजरावाला में कैंप लगा हुआ था या क्या था. तो सकलैन की बॉल पे हेलमेट नहीं था मैंने पहना हो, तो मैं कहा चलो मैं नेट में हल्का सा ऐसे कर देता था. तो मैं कहा चलो नेट में तो हेलमेट पहना हो, तो उसमें नहीं था पहने. इंज कीते ऐथे बच के ऐथे 4 टांके लगे. नहीं उस बाद मैं कह रहने दो जी, सीधा खेलो. सबसे पहली रिवर्स स्वीप कब देखी आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में? माइक गेटिंग की देखी थी मुझे तो. माइक गेटिंग की नहीं, वो इसलिए क्योंकि वो फेल हुआ था, इसलिए सबको याद है. उससे पहले वर्ल्ड कप में भी इयन बोथम ने 1983 में भी रिवर्स स्वीप खेली हुई है. Really? अच्छा, I didn't know. I recall the Mike Getting one. नहीं, But क्योंकि you're right. Ian Botham must have. He was an innovative guy. Against India. Yeah. I mean, as a kid, you were watching in 1983. तो ये शॉटें पहले भी खेली जाती थी. इंग्लैंड में तो बंद हो गई ना गेटिंग के बाद. नहीं, क्योंकि वो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल था, उसने जिताया मैच था, उसने रिवर्स स्वीप खेली, बॉर्डर को आउट हुआ. वर्ल्ड कप वो 87 वर्ल्ड कप है. उसके बाद इंग्लैंड की क्रिकेट आप देख लो, क्योंकि वो इनोवेट होनी ही बंद हो गई ना. क्योंकि अगर सक्सेस नहीं मिली है तो सबको आपने बंद करा दिया. It took them 20 years for McCullum to come and say कि अच्छा भाई अब खुलो, नहीं तो आर्थरटन ही चलते रहे. Because we saw a lot of these sweep shots come into play in the Dubai ground. Why is that? Why here more than other places? I guess slowness of the surface as well, and you got more spinners operating in Dubai. जिस तरह के भारतीय टीम के पास 30 ओवर स्पिन के हैं, जिस तरीके से विकेट चल रही है, दैट्स अ बेस्ट वे ऑफ गेटिंग रन्स अगेंस्ट दैट सॉर्ट ऑफ स्पिन. आप लेंथ से पिक करके स्वीप कर रहे हैं, या फिर वो लाइन, आज की डेट में बैट्समैन वो लाइन को पिक करके स्वीप शॉट मार रहे हैं. कई बार जो अजय भैया भी कह रहे हैं ना, आजकल मुझे लगता है सब बैट्समैन का कंप्यूटर का प्रोसेसर थोड़ा तेज चल रहा है. बिल्कुल, क्योंकि आप परसीव करते हो, एंटिसिपेट करते हो, एंड हाउ क्विकली यू गेट इनटू पोजीशन. जिस तरीके से हमारा एक स्काई है, सूर्य कुमार यादव, एक ही बॉल को अलग अलग तरीके से खेलता है, एंड ही प्रैक्टिसेस दैट.
So that processor has to be quick enough. But also remember what Wasim said the other day, that the quote, that I do not fear a guy who practices 10,000 different kicks, but fear the guy who practices one kick 10,000 times. पुरानी Waqar, कहावत भी your है ना favorite भाई? shot? What did you like to do? That you On drive. हैं? ऑन ड्राइव पूछिया मैं देखो बोलो तुसी नहीं मैं दसना था वो जो अब तो इलेक्ट्रिकल बोर्ड आ गए हैं ना अब तो जो एडवर्टाइजिंग की वो होर्डिंग्स हैं वो इलेक्ट्रिक आ गई हैं हमारे दौर में वो टीन की गत्ते की होती थी वो जो लगे होते थे जी board। जी 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 फट्टे विकी ने कम से कम मेरे 100 फट्टा तोड़े हैं really और जाकिर खान ने इन्होंने बड़े फट्टे तोड़े हैं मार शॉटा इतने थैंकलेस लोग हैं ना इतने थैंकलेस लोग हैं मेरा मतलब है ये तवक्को नहीं करता था लेकिन ऐसा हुआ और ऐसा होता भी रहा है आई मीन You're good बैटिंग shot. अब उस जमाने में शायद इतनी बैटिंग ना नीचे के बैटर से इतनी एक्सपेक्टेड भी नहीं होती थी अब तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है और तो उस जमाने में कोई रन कर देता था नीचे से तो एक बहुत बड़ा अजूबा होता था मैंने 1-2 मैचेस वसीम भाई जिताए भी नहीं ऐसा टेस्ट मैच जिताया आपने टेस्ट मैच तो आर्डेनाल भी जितवाया है लॉर्ड्स में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच सर 43-44 रन की पार्टनरशिप की है हाँ। 9वीं विकेट की पार्टनरशिप है उसमें आपके कितने मैच थे? साथ में कौन था? 22-23 रन आधे किए थे ऐसा नहीं, Good पूरा job. पूरा उसमें We were किया। chasing 136 and पाकिस्तान 93 पे मैं अंदर गया था 93 पे मैं अंदर 94 पे मैं अंदर गया था हाँ। और पीछे आकिब सी सोचो सोचो वो थे अच्छा हुआ क्या उसमें सोचा थी कोई गाली तो तेरे पीछे है गुड वन सर हुआ ये कि अंदर गया हूँ मैं क्या वसीम भाई की हो रहा अरे क्या बस तू खेड़दा जा तू छाड़ दे एंड देन एक्चुअली जब आपको ये हो ना कि आप हार गए हैं एंड देन आई गेस योर बॉडी रिएक्ट्स डिफरेंटली आपको डर नहीं होता फिर आउट होने का और ये मेरा मतलब है फिर आप यू प्ले फ्रीली उसके बाद जो हम लोग खेले ना कोई तकरीबन जो आई थिंक 43 रन 43 रन चाहिए थे और वो तकरीबन हम जब तक 30 रन नहीं कर लिए ना 30 रन तक हमें कोई फिक्र नहीं थी वी वर जस्ट प्लेइंग फ्रीली मैंने भी और डेवन मेलकम को भी सीधा चौका मारता है एवी मार रहे हो भी मार रहे हैं एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथली ही स्वेप्ट कपल ऑफ ब्यूटीफुल शॉट्स और हम लोग ना गप्पे मार रहे हैं अंदर सेंटर में आते थे ओवर के बाद उस इनिंग्स और उसको जीतने अंदर सेंटर में क्या गप्पे मार रहे थे फजूल गल्ला जी वैसे करने हैं इसी तरह की बातें थी लेकिन वंस वी गॉट इनटू लाइक लास्ट 10-12 रन जो रह गए थे ना वो चलो साढ़े थे हालात अब पतले होने शुरू हो गए थे यार ये जीत सकते हैं यू नो स्टार्टेड बिलीविंग दैट कि यार जीत सकते हैं उस टाइम ज्यादा मुश्किल हो गया और मुझे याद है कि अभी भी को बैल्कनी थी लॉर्ड्स की तो आके बैठा सी बाहर ठीक है ना आके बैल्कनी में बैठा हुआ था अंदर नहीं गया बाहर बैठा हुआ था वो भी उस टाइम बैठा जो 10-15 रन रह गए ना 10 रन रह गए उनका वो मेरे थे ना आ जाए ही स्टार्टेड थिंकिंग कि यार मेरे थे भी आ सकता है मैच अगर 5-7 रन रह गए आउट हो गया मेरे वर्गा तो फिर क्या बनेगा मेरा तो ही वाज अंडर सो मच प्रेशर आई कुड टेल फ्रॉम देयर उन्होंने बड़ी स्क्रीन पे उसको दिखाया भी उन्हें ग्लव्स पाए ने हेलमेट पाया उन्हें बल्ला इस तरह फड़े आई कैन शो यू दैट ऑनेस्टली आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग वो बाहर बैठा और उन्हें ठोडी जड़ी ना बल्ले दे हैंडल दे रखी और ऐसे पे उसने अगले 12 रन जो है ना वो कैसे देखे हैं अगर वो हाइलाइट्स देखो ना तो जो ही आखिरी शॉट हमने खेला है ना जीतने के लिए जो विनिंग शॉट वसीम भाई ने मारा तो ਅਸੀਂ दौड़े हैं ओदी जड़ी ओने बड़कियां मारियां ने ओ जी ਤੁਹਾਡੀ ऐसी और आपने विकी वो भी मैच जिताया है ब्रिस्बेन में वनडे आपने और सकलैन ने दो जिताए इंडिया 2 जिताए वनडे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी और इंडिया के खिलाफ तो फिर इसका मतलब है भाई एक तो पक्की बात है ये जो फट्टे तोड़े हैं वो गलत वगराएगा तो नहीं गए ना इंडिया वाला केड़ा सी मैनू ये ਉਹ ਈਦ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ हाँ वकार एंड ईद तो होनी है एक बार ईद ही सी ईद ही 2-3 दफा है ईद ही सी नहीं कितने ब्रिस्बेन one wicket Brisbane ओ in अच्छा 2000 में Brisbane में हुआ था 2009 वो भी आ रहा हुआ मैच तो अंडर प्रेशर विकी यू सी द बेस्ट ऑफ विकी भाई कल हमें गोल्फ में भी उन्होंने बराबरी कराया 17वें होल पे वो क्या कह रहा था कह रहा था अंडर प्रेशर ना झाड़ियां ना गेंद एनी साइड ला होन देखना कि मेरी गेंद सी अंडर प्रेशर Yeah. Well, there you have Josh English. What an innings he played. What a fantastic play. Waqar made a very good observation. It's like the right-handed version ऑफ ट्रेविस हेड of Travis Head. That's very nice. क्योंकि जितने तेजी से हाथ चलते हैं और जो कट मारते हैं ना ऐसा लगता है कि जैसे राइट हैंडेड So now the question is कि ये हाथ चलना आपने भी उस दिन एक्सप्लेन किया था ये नेचुरल है कि ये आप सीख सकते हो जो हाथ जो तेज चलते हैं जैसे उस दिन भी हम डिस्कस कर रहे थे इस पे आई थिंक
नेचुरल आई थिंक क्रिकेट में ना बैटिंग नेचुरल मूवमेंट है बॉडी की ना बॉलिंग तो आप सीखते ही हैं आप बचपन से जो करते चले आते हैं आई थिंक आई डाउट के कोई 2 महीने में चेंज हो सकता है लाइक ग्रेट वीवीएस लक्ष्मण मुझे याद आता है यू नो वो उसकी जो रिस्ट थी उसके हाथ नहीं चलते थे लेकिन उसकी रिस्ट चलती थी तो बचपन से अजू भाई का भी तो हाथ जिसके चलते हैं वो आई थिंक बचपन से ही करते करते जिसकी आदत हो आई थिंक इट कम्स इजियर आपने मुझसे ब्रेक में एक क्वेश्चन पूछा था कि ऐसी पुल क्यों नहीं? ऐसी पुल हमारे पाकिस्तान के क्रिकेटर्स बड़ी कम मारते हैं विकी इज इट व्हाई डू यू थिंक इट इज मैंने बड़ी कम देखी है ये जैसे इंग्लिश जो बैक ऑफ अ लेंथ वो भी पेस लाइक वुड या जोफ्रा आर्चर उनको वो मार रहा था आई थिंक द रीजन इज कि ऑस्ट्रेलिया में बचपन से खेलते आ रहे हैं पिचें तेज हैं रिएक्शन टाइम कम है तो आपको हाथ और ये पुल जो है ना बड़ी स्पीड से हाथ चलाने पड़ते हैं तो आई थिंक इनके हाथ इसलिए तेज चलते हैं कि गेंद तेज आता है तो यू हैव टू रिएक्ट वेरी क्विकली तो इसलिए आई थिंक दैट्स द रीजन ही पुल्स रियली वेल और जितने भी ऑस्ट्रेलिया से आप आएंगे देखेंगे इसकी तो ये भी क्वालिटी है कि ये स्पिन को बहुत अच्छा खेला अभी बताया ना कि ये यू नो डेब्यू में 100 किया इन श्रीलंका इज अ टफ प्लेस टू गेट 100 स्पेशली ऑन अ डेब्यू आई थिंक रीजन एक बड़ा जो है मैं समझता हूँ कि वो है कि एक तो यंगस्टर है यंगस्टर हम वाइट बॉल की यही बात कर रहे हैं यंगर प्लेयर लाओ वो इसीलिए कि यंगर प्लेयर अभी शुभमन गिल भी देख लिए ऑस्ट्रेलिया लेके आती है ऑस्ट्रेलिया आपको सरप्राइज करती है किसी ना किसी 1-2 प्लेयरों के साथ 5 प्लेयर टीम में उनके नहीं है पेस बैटरी उनकी टोटली नहीं है ठीक है उसके बावजूद दे लुक अ वेरी डेंजरस साइड दैट्स बिकॉज दे कीप ब्रिंगिंग द यंगर लॉट एंड गिव देम कॉन्फिडेंस एंड टेल देम टू प्ले सर्टेन वे टेल देम टू जस्ट गो एंड प्ले फियरलेस क्रिकेट निखिल आई थिंक व्हाट अजय भाई सेड अ लिटिल व्हाइल अगो जो वसीम भाई कह रहे थे ना कि किस तरीके से हाथ जल्दी चलते हैं जो अगर एक बैट्समैन 100 बॉलें खेल रहा है अगर वो मारने को देख रहा है ऑटोमेटिकली योर ब्रेन्स फीडिंग यू आई हैव टू स्टे बिसाइड द लाइन सो दैट माय हैंड्स गो फ्रीली ऑर्थोडॉक्स एंड कन्वेंशनल वे ऑफ प्लेइंग वाज यू आर ऑलवेज गेटिंग क्लोज टू द बॉडी एंड यू आर प्लेइंग स्क्वायर एंड यू लुकिंग टू प्ले वेरी क्लोज स्क्वायर होके हाथ खेला उसमें आदमी टेक्निकली साउंड होने के लिए हाथ फंसते थे बट नाउ सबकॉन्शियसली यू आर स्टेइंग बिसाइड द you know line of the ball and you're allowing your hands to move freely और आजकल ये क्रिकेट में क्रीज बड़ी यूज कर रहे हैं बैटर्स वो जो बैटिंग क्रीज है जो हमने जो सीखा या अपने सीनियर्स को देखा या दुनिया को देखा वही थी कि अगर ये लाइन है फॉर इंस्टेंस अगर दिस इज द पॉपिंग क्रीज जो फ्रंट वाली है कि ऐसे खड़ा होना है ये दोनों पाँव ऐसे आएंगे उस लाइन में यहाँ आगे चले अगर मीडियम पेसर है स्विंग हो रहा है तो थोड़ा उससे आगे आ जाओ मगर अब वो क्रीज के अंदर आ जाते हैं कई दफा ऐसे ही है but I think one of the things, and I not because I want to compliment or anything, is also because there are not many bowlers out there in the world that could bowl those lethal Yorkers that would hit right at the base of the stumps. So you can move around here and there. में होते तो हमें भी ये पता होता कि लैप मारनी है ये मारनी है तो में भी हमारा डिफरेंट माइंडसेट होता बिकॉज हमारे दौर में शॉटें नहीं थी नहीं इवॉल्व कर जाते ना हर अपने टाइम में ही यू नो जब आपका टाइम है उस वक्त आप क्या करते हैं वही मैं इसीलिए तो वसीम भाई कहना वहाँ कि साडा दा लग गया है दा जिन्होंने कहना दा लग गया कि उस टाइम ये चीज़ें इनोवेट नहीं हुई थी मैं बहुत सारी दुनिया को दियो जी तुसी यॉर्कर कर दे तो डंडे उड़ा मैं कहा नहीं साडा भुलेखा है इट्स नॉट गोना बी दैट इजी बिकॉज ये जो इनोवेशन अभी बात कर रहे हैं ना कि जो वसीम भाई आपने एक्सप्लेन किया कि डेप्थ ऑफ द क्रीज जो यूज़ करते हैं ना that is something new बल्ले चेंज हो गए हैं और ये शॉट है we would have struggled I think no that's you being modest I don't know about this the kind of accuracy that the both of you possess no, they would have evolved and come up they would have that's what I'm saying and the proof is that when they started and when they finished they were different kinds two different kind of so you evolved as time required him especially I feel you know how that outswinger started वो शुरू में कहाँ होती थी you know पहले अंदर ही गेंद you talking now I struggled in 96 and we have circled back to 1996 see he's evolved he's starting to enjoy he's enjoying actually अच्छा ये झाका निकल जाएगा इस वाले ड्रेसिंग रूम के उधर ही उतर गया all right let's take a look at what's going on at the Rawalpindi Stadium. We have some live images. You can take a look. The covers are being removed, which is a good sign. We're hoping that we can have a good game today because these two teams are worth watching in action against each other. And with that, we're going to take a break. But when we come back, there's more on the other side. Stay with us. This is the DP World Dressing Room. And
More images coming out of Rawalpindi. There are still a few drops of rain here and there, a little drizzle, covers on, off, just like us in the DP World dressing room, where we are also on, off. I'm Fakhri Alam, you're watching the We are DP World totally dressing on. room. Come on, don't say that on, off, on, off. We are on. Proper on. There you go. I have 4 panelists who are completely on. You know, in the break, a very interesting thing happened, and हम आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, because as soon as that story that was narrated by Waqar and Wasim about their partnership in Lords and Aqib Javed sitting on that balcony of the dressing room, somebody put up first the photograph. Okay, ye Zohaib, cricket king. You put up. I don't know where you dug up this so quickly. You got the Aqib Javed picture with the helmet on. Sir, मैं बता रहा हूँ ना कि मैं Let me just close it up. That's a picture of Aqib Javed sitting on the balcony. मैं बता रहा हूँ कि मैंने वो उस टाइम नई बड़ी स्क्रीन आई थी, मैंने देखा हुआ, मुझे इसीलिए याद है। और हम ये स्टोरी है जो घटते नहीं है, हम में भी थोड़ा मसाला जरूर डाल देते हैं, लेकिन घटते नहीं है स्टोरी। That's storytelling, the art of storytelling, and that's what we love here in the dressing room. Is the art of storytelling. That's what we try to do. And let's tell you another story. The story of South Africa's innings against Afghanistan, their first game here at the ICC Champions Trophy. Now look at that. South Africa batting first. The pitch surprised everybody. South Africans were very happy about it. Rickelton innings, very special. And South Africa winning by a big margin on that one, 107 runs. But that Rickelton innings and Rabada in the wickets, and Rabada has been around for, you know, he's still doing the job for South Africa. It's fantastic. And that's what I think Ajay has been saying, that, you know, this is one team that probably has a little bit more ingredients in their sauce. All bases covered. Yeah, all bases covered. You know, Rabada, pace, bounce, comes in at one, you know, तीसरा bowler है. Yeah. उससे पहले Marco Jansen, Yeah. you know, so or Lungi Ngidi starting with a new ball at the end, you know, he's got that little slow one. So they have a little attack that And can... they also have Maharaj और Samshi. Yeah. अगर दोनों में से एक खेलेगा इसको खिलाने स्पिन भी है उनकी Yeah. और उनकी फील्डिंग भी, you know. Yes. बैटिंग भी एक देखो ना आप, एक से बढ़कर एक है। अभी वो जो नाम है जिनसे डरते हैं वो तो खेला भी नहीं था उस दिन, अभी वो भी जुड़ेगा। क्लास ये लोग फॉर्म में है, ये रैकल्टन है शायद, ये ही इज बीन वेरी कंसिस्टेंट थ्रू आउट। उनकी जो लीग होती है वहां भी रन बनाए हैं टेस्ट मैच में भी। It was a great innings, the short selection and everything. Rickelton, ये आपकी स्क्रीन पे लेकर आते हैं जी। ये देखो, देखें, ये तो हमारा रफीकी ना 3 ओवर के बाद थोड़ा सा हल्का भी हो जाता है, you know, slow runों पे आ जाता है। But yeah, spin, you know how well he played spin, and a lot of people talk about footwork with spin. आप देखिएगा कि स्पिन जो अच्छी खेलता है ना, वो जब बैकफुट पे जाता है उसके पैर जुड़े हुए नहीं दिखेंगे आपको। Okay. पैर खुलेंगे, किसी को थप्पड़ मारनी हो पैर जोड़ के थप्पड़ मारना किस दिन, और किस दिन पैर खोल के थप्पड़ मारना, तो समझ आएगी कि पैर खोल के फायदा क्या होता है। ट्राई कर लेते हैं इसको, फखर को थप्पड़। नहीं, मैंने जब भी किसी को थप्पड़ मारते हुए पैर खोले तो मुझे लात पड़ गई है। ठीक है ना, इट्स अ डेंजरस थिंग। वो फिर गुगली मार दी। मैं ट्राई करा, आज सर ट्राई कर ट्राई करा। नहीं, I thought I have to slap you. No. The other way around. You नहीं, फिर got आप it बैठे so नहीं, wrong. नहीं आप बैठे नहीं। नहीं, मैं ना खुश हो रहा सर, तुझे मैंने मौका दे देते। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਲੜ ਲਓ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ और पुप्पी ने तो देखो, तो जो आपस में लड़ो पीछे। All right, that fantastic Rickelton there. But let's take a look at Rabada, as Ajay was saying. Waqar Rabada, I mean, this man is still, you know, generating performance after performance. Yeah, just the line and length. He's got great length. I mean, इधर तो बैट्समैन भागे हैं, इधर आप देखिए, छोड़ के चले गए पिच। ये उससे पहले इसी बॉल पे छक्का मारा था। नहीं, वो तो लप्पा मारा था इसने, जो भी मारा था, बट ये स्ट्रगल कर रहा है इस टूर पे। कौन रबाडा? नहीं, इब्राहिम तो नहीं, यार रबाडा की बात की जाए तो Experience as well, Vicky, now. Yeah, I He's been mean, playing he's for got- so long, and he's सारा improving बात day by day. उसी में सारी बात वही आ जाती है। When you play longer version, Yeah. you're lot fitter and you have lot more control, and that's what he does. He plays regular test match cricket. He hardly miss a test match. He's got great record in test match, so that makes a massive difference. बाकी जितने भी हम लोग बातें कर रहे हैं, फिर वो पाकिस्तान या दूसरे आ जाएगी बात, लेकिन ये है कि हमारे लड़के या हमारी टीम जो है ना, वो 4-डे क्रिकेट जब नहीं खेलेगी, जब आपकी टांगों में जान नहीं होती है, तो आप फिर स्ट्रगल करते हो। 1-डे क्रिकेट सफ़र करती है, T20 उतना सफ़र नहीं करती। There you have it, Rabada there. Waqar, let me ask you this. Has Rabada been able to fill the shoes of Dale Steyn?
I mean, he's done pretty well. I mean, ऐसा नहीं है कि completely fill कर दिए, लेकिन उसने उसकी कमी ऐसा जो होता है ना, कमी महसूस हुई हो, वो कुछ ना तक maybe 75-80% इसने fill in And his heroes, like he mentioned in that clip, was the great White Lightning Alan Donald, then Sean Pollock, and then of course the man you're talking about, the best of modern era in the history of the game, Dale Steyn. What a bowler! What an action, and aggression, action, swing, you name it, Steyn had it. क्रिकेट में वापस कब आए हैं ये लोग? अगर आप देखे जाए तो कब आए? 1991 में, 91 में आए थे। 91, 92 वर्ल्ड कप जो 92 वाला था, उसमें ये पहली दफा आए थे। और उससे लेके अब तक देखें तो इन्होंने 3-4 ग्रेट्स फास्ट बॉलिंग में ग्रेट्स हम निकाले हैं। उसको बोल रहे हैं, वो जो जिसने 400 आउट किए हुए हैं, वो जो वाइड ऑफ द क्रीज आके करता था। वो तो किसी की खाली वो तो सर किसी गिनती में ही नहीं आता। जब आप एलन डोनाल्ड की बात करते हैं, पॉलक की बात करते हैं, स्टेन की बात करते हैं, अब रबाडा एंड अभी तो शुक्र करो और नोकिया जड़ा वो इंजर्ड है, वो इंजर्ड है। ही इज प्रोबब्ली द मोस्ट लीथल पेस वाइज। अभी बोल रहा है कोत्सी भी इंजर्ड है। सो दे हैव द हिस्ट्री। आई मीन दे आर द टफ नेशन, जैसे ऑस्ट्रेलियन को हम बोलते हैं, tough nation, long spells, and fit people. And I think plus is they're physically very fit. This era le lo, 92 le lo, mid 90s le lo, 2000s le lo, Jonty Rhodes, Gibbs, all these guys were tremendous. I mean, Jonty was the best ever, so was the Gibbs, as far as fielding concerned. Fitness, you're absolutely right. Just natural athletes. क्या ये हो सकता है इसलिए कि ये दोनों टीमें सदर्न हेमिस्फीयर की है, वहाँ की हवा अलग है, खाना अलग है, जीना अलग है। Could be. क्योंकि यही तो टीमें हैं सदर्न हेमिस्फीयर की, क्योंकि दुनिया वही है, लेकिन हर जगह अलग तो चलता है। न्यूजीलैंड आपकी बात सही है, मगर मैं फिर उसमें कुछ और सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि फिर तो हमारी भी जो आपस में पड़ोस की टीम है, हमारा भी मामला एक जैसे होने चाहिए थे। समोसे भी वही हैं, पकोड़े भी वही हैं, जलेबियां भी वही हैं, रसगुल्ले, रसमलाइयाँ, हलवे, सब कुछ वही है, मगर परफॉर्मेंस वो नहीं है। क्यों? दुनिया गोल है ना, कभी इसकी थी, कभी उसकी, वो वापस आ जाएगी। Let's not talk performance, let's talk fitness. नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं, and I think it's a way of life. You grow up. एक I think इसका जो एक ही चीज जो नजर आती है इन दो टीमों में, और न्यूजीलैंड भी उसमें साथ डालते हैं, कि इनके बचपन में ना इनका एक स्पोर्ट है जो फिजिकल स्पोर्ट है, रग्बी है, वो हर बच्चा खेलता है स्कूल में। बस मुझे समझ में आ गई है, आप लोग मुझे हिंट ये देना चाह रहे हैं कि आई शुड मूव साउथ। बेसिकली आई अंडरस्टैंड व्हाट आई कैन टेक अ हिंट। I think fitness comes what you do in your childhood rather than what you do when you grow up. वकाल भी को कुछ आया है जी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जाके देख लिया। भाई खाने तो फर्क होगा ट्रेनिंग के बाद, इट हेल्प यू रिकवर। ये एक्सपेरिमेंट भी फेल हो गया हमारे लिए। So I'll just tell you the great Dale Steyn's record: 439 wickets. Then of course Sean Pollock 421. Then Natini 390. I thought 400, but still, what a performer. Then AD. Alan Dolan, the White Lightning, 330, and Rabada is 3 on 327. And he's got plenty of cricket left in him. He might go past the great Dale Steyn. Might. I think उन सब में सबसे एफर्टलेस बॉलर ये नजर आता है। आपने जितने नाम लिए, ऐसा लगता है उनको भागना पड़ता था जोर, ये तो आता है ऐसे मजे करता हुआ जिडिंग। अच्छा एक टाइम था 300 रन 300 विकेट जो लेता था ना, उसको ग्रेड्स में काउंट किया जाता था। मुझे ऐसे लग रहा है वो खत्म हो गया कहानी। अब नाउ यू टॉक 500। I don't know if it's more part or what it is, but it's it the could part. Be DRS too, by the way. It could be DRS. It could be DRS. It has to be DRS. I'm not taking the ability away from fast bowler, but DRS has helped. ये आप लोगों की कितनी कोई पीरियड डाउन गई होंगी जो अब आप देखते हैं रिप्ले और नहीं, और जो नकली मिली वो नकली 4 मिले होंगे, 8 मिले होंगे। अच्छा सुने, ये सिर्फ इधर इन्हीं को तो नहीं ले नकली तो सब बात नहीं मैं कर रहा हूं, मैं अब आप बोल रहे हो वो हमारी ही बात कर रहे हैं, हमारी ही बात कर रहे हैं। You were talking about these two। बात तो फिर बहुत दूर तक जाएगी। अगर बैट्समैन की बात कर रहा हूँ, डीआरएस से डेफिनेटली फर्क पड़ा और गेम चेंज हो गई है। एक रीजन ये भी है, इसलिए स्पिन अच्छी नहीं खेल रहे लोग, जो आप कह रहे हैं ना आजकल के बल्लेबाज ना पहले स्पिन सिंगल करते थे आराम से, सिंगल करते हुए ना आप ऐसे करके बल्ला ऐसे करते थे, इधर के लिए मिस हो गई, पैड पे लगी, आउट थोड़ी देता था। तो इसलिए वो सिंगलें इजी भी होती थी। फ्रंट फुट पे आउट देते ही नहीं थे, फ्रंट फुट पे आउट था ही नहीं। Mazhar has just shared a stat with us that Pakistan have not produced a single
fast bowler in last 20 years who has reached 200 test wickets milestone. That is alarming. That's very alarming. That's thank you for sharing that, It's Mazhar. purely fitness. Skill का मैं नहीं मानता कि skill का फर्क है. It's the The fitness. last Pakistani bowler to take 200 wickets in test was Waqar Yunus. He's sitting right here. Yeah, and that Yeah, I was mean, a it's long just- time ago. Still मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, it's not the skill. I mean, we had Shoaib Akhtar, we had Umar Gul, we had But you we had more test plenty matches of the to play. bowlers. But They you had played more test matches. They played test matches. Injury रही ना, injury हो गई, उतनी fitness नहीं है, उतने overs नहीं कर सके, तो फिर ये तो होगा. Can you hear the rain has really started pouring here in Dubai? That's the rain. That, Is it? yeah, Yeah. it is Okay. the rain. Achha And फिर अंदर look ही at रहते that. हैं. Covers have also come out on Rawalpindi. That's a good That's news. a bad sign. Look Oh, at those. there rain, I thought. Oof, you were saying. as per Waqar Yunus, डड्डू ना निकला यहाँ से. We're going to take a break. मेरे पे क्यों डाल रहे हो? World dressing room. सारा भी मेरे पे पाल देना. सारा जोर तेरे का पकोड़े. And these are the shots coming in from the Australian dressing room. The kit bags are out there, but unfortunately they're still zipped up because there's a lot of rain around in Rawalpindi right now. But we're hoping that we get to see a game. This is nice. Look at this. That's a lot of bags, by Probably the way. teams Look at अभी you. शायद नहीं आई. Maybe they're staying back in the hotel, waiting for it. Maybe. वो उनको officials Yeah. बताएंगे कि भाई सीखी खा रहे थे टीम सो रही है तुसी तो जो कर रहे हो सो कर रहे हो. व्यूअर्स को ये बताना मैं जरूरी समझता हूँ, उनको पता चलना चाहिए कि अभी ये जो ब्रेक में थी ना, ब्रेक में था, ये फखर मियाँ उधर खड़े हो गए ना, वो यहाँ से कोई तकरीबन कोई 20 गज दूर खड़े होके ये सारा कुछ बोल रहे थे और चलते हुए आ रहे थे ऐसे थे. वो पकौड़े लाइन गए सब. आई डोंट नो पकौड़े मैंने आए मंगाइए. पकौड़ा दे आर कमिंग. हमारे वहाँ उनको भजिया बोलते हैं, अरे वाह, तो थोड़ा टाइम लग रहा है. इंग्लैंड वहाँ बाहर भी तो बोलते हैं. हमें कोई जल्दी नहीं. इंग्लैंड में भी तो बोलते हैं अनियन भौजी. Onion bhaji. Onion bhaji. 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 Oh, nice. And naan Pakoda. bread. Naan bread. वैसे Naan bread, yes, naan bread. जी. उन्होंने वो जो इंग्लैंड में क्या है, चिकन टीका, Chicken चिकन मसाला. ये टिक्का कहाँ मसाला. का है? वो हमारे तो मुझे इंडिया में तो कहीं मुझे नहीं मिला चिकन टिक्का मसाला नहीं. मैं बटर चिकन के बारे में बड़ा क्यूरियस हूँ. ये कहाँ से बटर निकला है? चिकन इंडिया में है, बड़ा मजेदार बनता है. नहीं, पंजाब लेकिन में तो originate तो butter has butter chicken originated in India. I don't know, but it's must have been because it's every restaurant and it's one of the most popular dishes is all I would over like India. to know the origins of butter chicken. दुनिया Yes, yes. भर में इंडियन रेस्टोरेंट जहाँ भी जाके बाहर खाते हैं ना, जब ऑस्ट्रेलिया आएंगे, भाईजान, कोई इंडियन खाना नहीं है उसमें. मेरी बात सुने. From ये- what I believe, चीनी डालते हैं. रहू भाई बनाते थे हमारे मिडल्सबरा में. I could be wrong, but what I've been told is that butter chicken actually happened in UK by the curry houses. Probably. Right? So I want to find out, अगर आप लोगों को पता है कि where butter chicken really originates from, please do share that with us. We'd like to know. वो मुंह में एक दफा पानी ना आ गया लैंकाशायर भाई. के साथ खाना खाने ही जाते थे ना शाम को मैच के बाद. तो इयन ऑस्टिन बुली बड़ा जबरदस्त प्लेयर था. इंग्लैंड भी खेला. बिट चबी बट ऑलराउंडर. सूट करता था वैसा. तो बॉलर रात को वो आके अपनी जो उनका एक रूटीन होती है, 2-3 इन्होंने बड़े बड़े पॉइंट बियर के पिए. मैच एवरी डे देयर वाज अ गेम एंड गो आउट टू हैव एन इंडियन. और वो ऑर्डर करता था चिकन विंडलू, मटन विंडालू जो भी कहते हैं. अब वो ब्रेट्स विंडलू कहते हैं उसको. अब वो विंडलू जो है उसमें मिर्चें एक्स्ट्रा हॉट, वो ऐसे ही वो बड़ी गर्म मिर्चें खाती, वो और मिर्चें डलवा के आता था. तो वो एक तो वो बियर पी रहा है, ऊपर से नान फिर तोड़ के अंदर डालता था उसके. वो फेर खांदा सी. मैं खा रहा था, पसीना भी डिग रहा है. It wasn't a very good picture. It's not. Absolutely not. Tauba. Not good. They loved it. ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ. ऐसी गल नहीं है. नहीं, मुझे butter वैसे chicken जो है ना, एक that बात butter मैं- chicken is on my एक palate बात right मैं now. बता दूं, भाई ने पिछले 4 दिन से ना डाइटिंग कर रहे हैं. भाईजान 4 दिन नहीं, अब तो 5वां दिन चल रहा है हमारा यार. अरे सॉरी गलती होगी. 5 दिन से एंडा गोश्त खा रहे हैं सिर्फ. रोटी नान नहीं रोटी नहीं खा खा रहा. रहा. उसकी वजह है क्या वो मिसबा नहीं है, मैं जो उसकी कमी पूरी करनी पड़ रही है. वो तो मिसबा होता तो सारा नहीं, गोश्त मिसबा किसी खा ना लेता. किसी चैनल पे चल रहा होगा. रोटी खा रहे का हो मतलब है किसी चैनल का गोश्त उड़ा रहा होगा. 100%. ब्रेक पे जाने से पहले we saw that puddle of water and I said डड्डू ना निकल आए कहीं बीच में से. And there's a reason for that because there's a story behind it, a story that involves Waqar and Wasim. Who's going? Are you going to narrate it? No. You're not going to narrate it. No, Wasim, you narrate it. Why you not telling the story? Because it's not my story at all. It is. We just You're the made one it who up. brought it up. No, I'm not I have telling any witnesses. story. 1, 2, 3. I have No, 3 we had a witnesses. test match in Faisalabad, in Sheikhupura, against South Africa, and obviously team में लाहौर ठहरी हुई थी, so we used to drive every morning.
it was bit painful for ਇਹ ਉਹੀ ਮੈਚ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ 250 ਕੀਤਾ ਸੀ नहीं साउथ अफ्रीका से था वो टेस्ट Okay, मैच sorry, हुआ ही नहीं था sorry. तो ऑब्वियसली जब आप वहाँ पहुंचे तो बारिश हुई थी रात को ठीक ठाक शेखोपुरे में तो इफ आई रिमेंबर जब गए हैं तो कवर उठाया तो यूजुअली ग्राउंड ऐसे बनती है ना कि पानी आए तो इधर को निकले साइड पे निकले किस जीनियस ने ग्राउंड एंज बनाती थी बेसिन की तरह वहाँ गए कवर किसी उठाए genius ने? वहाँ उठाए कवर उठाए नीचे से तो कीचड़ तो था ही था 2-4 मेंढक भी निकल गए बीच से तो आई थिंक टेस्ट मैच एबेंडेंड हो गया था डड्डुआं दी वजह से रीजन इट वाजंट वॉश्ड आउट इट वाज डडूड आउट बेसिकली बेसिकली बैक इन द डे yeah back in the day अभी मैं क्वाइट हैप्पी कि यार रोज आना नहीं पड़ेगा शेखुपुर it was a very odd drive yeah नहीं ड्राइव तो ठीक थी बट उन दिनों में जवान थे तो उठना जरा जल्दी थोड़ा जल्दी पड़ता था उसके या लिए। इट वाज ऑड अब तो बुढ़े हो गए अब तो नींद नहीं आती अब 6 घंटे नींद आ जाए तो मैं क्रिसमस में समझना ईद आ गई है yes you're right Nikhil you've played in wet grounds I have England, जी हाँ 99 वर्ल्ड कप नॉट द इजीएस्ट आई मीन स्पिन के लिए अच्छा हो जाता है जब मतलब पिच कवर रहती है उस ग्रिप होता है बॉल इट गेट्स इजियर फॉर एनी बॉलर बैट्समैन के लिए वो आसान नहीं होता इसमें कोई तो राय नहीं है बिकॉज बॉल हवा में एक तरह से चलता है पिच होने के बाद एक अलग तरीके से चलता है सो थिंग्स गेट मच मोर टफर फॉर द बैट्समैन फॉर एज अ स्पिनर जितना अच्छा पाटा विकेट हो स्किड करता है बट हल्का सा भी कीचड़ जैसा हो जाता है या मॉइस्चर होता है अगर 24 घंटे से ज़्यादा कवर चढ़े हो तो दैट स्वेटिंग वो आपको पिच में हल्का सा स्पिनर को भी मदद देता है सो ऑलवेज एंजॉय फंसना शुरू हो जाता है बॉल बेसिकली नहीं और सारी रात अगर पार्टी की है तो आप एंजॉय करते हो सोने को थोड़ा टाइम मिल जाता है डिले हो जाता है और क्या अच्छे सर उस स्टेज पे तो आप जैसे नींद अरे नींद इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जी जी लाइफ कल हमें पता है कल नजर आ रहा था आपका मैं कहा आपस में कर ले तू होने भी 1 सेकंड पहले ही आना है ब्रेकफास्ट आज आया जैकेट ऐथे बैग ऐथे कॉफी पड़ी है क्रॉसो पड़े और बस में बैठ गया आके बस वैन में वो तो देखो अजय भैया की खासियत है लेकिन टाइम पे हमेशा होता है टाइम पे आता है नो ये और पर बिल्कुल कटिंग इट बट इट्स दैट्स द वे टू डू सर वक्त ही तो है लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट है क्यों वेस्ट करो हमारे बड़े बुजुर्ग नींद पूरी करो पार्टी पूरी करो लाइफ के लुत्फ लो व्हाट्स पार्टी इन योर बुक नाउडेज Oh, nowadays I think party is this, honestly, sure. because I think what you miss the most, playing के बड़े मजे होते हैं. Yeah. खेल का जो we are blessed to have lived a life that has been beautiful. But I think the most cherished जो party जो कहता हूँ मैं लाइफ में कि मैच खत्म होके बाद भी लाइफ जो होती है ना 15 आपकी टीम में होते हैं सबसे तो बनती नहीं आई एम श्योर एक टीम में हम जरूर होते हैं मेरी तो 14 नाल इसी बनती तो 2 4 5 दोस्त यार दोस्त होते ही हैं किसी का अंडा लगा होता है किसी ने 100 बनाया है किसी ने मार खाई है किसी ने विकेटें ली हैं सो एट द एंड ऑफ द डे यू ऑलवेज हैड एन इवनिंग वेयर यू स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स you shared good moments you shared sad moments you laughed and that is something that I miss the most and वो पार्टी जो है ना उसका कोई मुकाबला अकेले तो पार्टी यही वाली पार्टी है ना basically यही जो है। है। 99 I mean I had one of the best tours of my life I mean I played one game it was triangular India Pakistan and Australia वो वाली तो अब स्पिन का वहाँ पे इतना कोई काम था नहीं तो मीडिया पे सर चलता था तो चौपी शाम की पार्टी का ऑर्गेनाइजर का वो कप्तान होता था अच्छा कि कहाँ पे पार्टी हो रही है कहाँ क्या हो रहा था दादा था कप्तान कप्तान वो थे लेकिन शाम की पार्टी शाम का की पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का का शाम मैं का होता था। कप्तान अलग था दिन का कप्तान जी। अलग था ये कह रहे हैं। तो आप शाम के कप्तान थे basically। जो उससे याद तो आया अभी तक टूर तो आपने से हमें कोई ऐसे कप्तानी का अब तो कोई जौहर नहीं मुझे- दिखाया अभी तक जब से आप दुबई आए कोई एक जौहर सर नहीं ये दिखाया आपने। आपकी जगह है मुझे नहीं, उस आप टूर तो से हमको- याद आया जी जी भैया कि उस टूर पे ट्राई सीरीज थी 4 मैच थे इंडिया पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया तो हम वहाँ इंडिया से 3 मैच जीते 4 में से एक एडलेड में दादा ने बड़ा जबरदस्त 100 किया मुझे भी बड़ा भड़काया ऑफ स्टंप के बाद चौके पे चौका इधर दूं चौका इधर चौका सौरव गांगुली दादा ने अब मैं 8 साल 9 साल काम किया इंडिया में एज अ कमेंटेटर मैं अपने आप को हर टीवी चैनल पर कुट खाते ही देखा उस टूर पे चौके थे चौका एक मैच दिखा के उन्होंने ना कोई 8 साल दिखाया वो मैच मैं कहा यार बाकी मैच भी दिखा दो वसीम भाई अभी आपने एक चीज़ शायद नोटिस की है या नहीं की जाट अभी जब बात कर रहा था ना कि जी मैच के बाद शाम को जब बैठते थे तो किसी ने 0 किया होता था किसी ने 100 किया होता था और फिर जब इसने कहा ना कि जी किसी ने मार खा दी
इसने मेरी तरफ देखा भी है और इसने मेरी तरफ इशारा भी किया है। आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया क्योंकि मेरे निनल हो ही है ना, so I am suffering this. But didn't then you enjoy that evening? I loved it. Yeah, there you go. That's it. You go back out there and you basically enjoy that evening. Right. With that, let's take a look at what's happening in Rawalpindi because unfortunately the news coming out is not good. The umbrellas are out again. The covers are out again. And it looks like the teams are still inside the dressing room. It's a bit of mix, isn't it? This is the The DP door- World dressing room, and you're watching 10 Sports, and we are going to be back after these messages. And there you have the umpires in discussion at Rawalpindi Stadium right now with the umbrellas out. There is still drizzle around. There's a lot of water. There are puddles in the ground. And the groundsmen are trying their level best to get us some kind of a game here. But this will change the entire complexion of this group. We're going to talk about it. This is the DP World Dressing Room. I'm Fakhri Alam. You're watching 10 Sports. And I've got four fantastic gentlemen here with me talking about the game. Nikhil Chopra, Waqar Yunus, Wasim Akram and Ajay Jadeja. Let's take a look at what happens in the event that this game is washed out. We get a 1-1 situation, then what happens? Do we get the points table lagayega? Table coming up on your screen as Wasim wanted. Here's the table, Wasim. I'm having a look now. सबने एक-एक मैच खेला है. ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका खेल रहे हैं. इनको एक-एक अगर मिलता है 3-3 पे आ जाएंगे. So they'll have 2 games each. And then of course it'll be worrying some for England, or maybe they have a chance. Then I don't know. It'll be quite complicated. But I don't know. England will be happy or not. I think England won't be that disappointed with this. वो इसलिए कि इंग्लैंड को अगले दोनों मैच जीत रहे होंगे क्योंकि फिर ये 3-3 पॉइंट हो जाएंगे ना, तो अगले वो दोनों जीतते हैं तो फिर रन रेट जो है वो माइनस हो जाएगा. रन रेट का कोई चक्कर नहीं रहेगा. Points basically. पॉइंट्स पे आप चले जाएंगे आगे. Okay. Yeah. And they'll have a crucial game against South Africa. तो इंग्लैंड जीतने ही साउथ नहीं अफ्रीका से मैच रहेगी. जीतने ही नहीं केस उनको दोनों ही पड़ेंगे. लेकिन उस तरह हो सकता था कि अगर जीतेंगे तो रन रेट का कई चक्कर आ जाए, लेकिन इस तरह रन रेट का चक्कर खत्म हो जाएगा. अफगानिस्तान बहुत पीछे रह गई है. अफगानिस्तान लेकिन उनको भी तो चांस मिल जाएगा. अगर वो दोनों जीते तो वो भी पहुंच सकते. अब ओपन हो गया ना. अगर ये आज 1-1 पे हम जाते हैं तो देयर इज अ बिट ऑफ एन ओपननेस इन दिस ग्रुप फॉर एवरीवन. लेकिन फैंटास्टिक प्लेयर. इनक्रेडिबल. पिछले मैच में भी 52 बनाए थे और अच्छी बात ये है कि वो सिर्फ 36 वो गेंदों में बनाए. मिडिल ऑर्डर देखते हैं विदाउट क्लासन द वे दे आर गोइंग अबाउट द जॉब. एंड द गुड थिंग इज जितने भी अब सीनियर प्लेयर हैं जानते हैं कि किसी को एक वो स्टार्ट मिलता है ना, सो दे वांट टू गो आउट देयर एंड फिनिश गेम्स. यू सी अ लॉट मोर रिस्पांसिबिलिटी अमंगस्ट द बैट्समैन एज वेल. इट्स अ ग्रेट साइन. एंड यू लुक एट द साउथ अफ्रीकन इंटायर साइड, दैट पॉजिटिविटी, द बॉलिंग लुक्स प्रीटी सॉलिड, द बैटिंग लुक्स प्रीटी सॉलिड. एंड अभी जो इनका मेन प्लेयर जिसको हम बार बार बोल रहे हैं क्लासन, स्पिन को वो बहुत अच्छा खेलते हैं. टेरिफिक साइड. Yeah, uska record against Zampa is really good. He's averaging about 40 plus against Zampa. And Zampa he's a very good bowler. Yeah. He's been getting wickets against every opposition, but not doing very well against South Africa. That because of he comes in middle order and he takes him on. Well, there you have it. Matthew Short there. Good player as well, Waqar. Matthew Short, he's made an impression already. Yeah, he's a very good player. Ajay really likes him. Ajay was talking about him that I really like him because नाम शॉट जरूर लेकिन he stands tall. Yeah. He plays and जो सीधा मतलब ये सर ऐसे हो तो आधी गेम खत्म हो जाती. जब बंदा ऐसे होता है ना उसके पास दोनों साइड चलती. तो सर ऐसे होने का मकसद क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करेगा हमारे यंगस्टर्स को. यंगस्टर को यार मेरी टेक्निक्स देखेंगे ना भाई तो गड़बड़ हो जाएगी. बट आई थिंक अगर ऐसे आप देख रहे हैं, अगर क्लोज में आएंगे ना, अगर सर ऐसे गुग्गू जैसे मैं होता था ऐसे नहीं होगा तो आप लेंथ लेट पिक करते हैं. अगर आपकी आंखें ऐसी हैं, आपके पोजीशन आंखों की, जी माफ कीजिए, उधर जाना पड़ेगा आपको with the bat so that kids can get yours. Please come on, you have to go and no so the कैमरा ही नहीं नजर आएगा. अरे आएगा हमारा कैमरा. आए ना, आप मेरे साथ आए. अरे आपके साथ आए आपके साथ बड़ा डर लगता है. आइए because we really want young people to take advantage of this this opportunity. I wish they don't watch me, but I'll try and explain. No, you're very modest and very humble. But no, it's very simple. I mean, where is the screen now? Where are we going? Yeah, I think if they focus just on this part. Yeah. So it's very simple. आप घर पे देख रहे हैं, आप तो स्क्रीन पे देख रहे हैं ना. आप घर पे अपने कौन सा कैमरा यही है? यही है. आप अपने घर पे ऐसा कीपर पीछे रखिए और कोई भी जगह कोई स्पॉट देख लीजिए आपके सामने 10 गज पे और उसको ऐसे करके देखिए तो कहाँ नजर आता है. और जब आप उसको ऐसे करेंगे, अपने सर को सीधा ले आएंगे, वही स्पॉट देखिए आपको अलग डिस्टेंस पे नजर आने लग जाएगा.
तो इसलिए मैं मानता हूं कि जो ऐसे होते हैं वो लेंथ पिक थोड़ा लेट करते हैं, उनके पास एडवांटेज जरूर होता है, वो लाइन चेंज होती है वो अलग है, लेकिन जब आपका स्टांस या आपका सर ऐसे सीधा होता है तो आपको लेंथ पिक करनी उतनी आसान हो जाती है, और मैथ्यू शॉट को वो एडवांटेज नजर आता है। प्लस जब आप नीचे हैं तो यहाँ से फिर जो लेंथ है आप उसी को खेल रहे हैं। Right. जब आप यहाँ हैं, क्योंकि हाफ वॉली तो यहाँ पे भी हाफ वॉली है, वो दूर की जो लेंथ है उसके लिए टेक्निक चाहिए होती है। तो टेक्निक हमेशा बेहतर ये है कि आदमी ऐसे है, सर ऐसे है, ऐसे नहीं, वो शॉट में देखने को मिला है। आई थिंक वो एक एडवांटेज है। और अगर आप यंगस्टर हैं तो आदत जो डाल रहे हैं ये मत डालिएगा, नहीं तो मेरी तरह सफर करेंगे। ऐसे रखिएगा तो आपको वो लेंथ पिक करनी आसान हो जाएगी और लाइन भी बेहतर पिक होगी, That's क्योंकि कैमरा fantastic. तो यही है ना। Yeah, that is fantastic. And Wasim, if I was to ask you and Waqar, how important is the head position when you're bowling? I mean, what does that affect as well in bowling as well? I mean, the position of the head? विकी बॉलिंग का ये होता है कि बॉलिंग में भी हेड पोजीशन वेरी सिमिलर। आप मोस्ट स्पोर्ट्स आप देखेंगे तो आपको जो सर की पोजीशन है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो सर है ना वो आपका सबसे भारी हिस्सा होता है बॉडी का। जिस तरफ उसको ले जाएंगे बॉडी आपको ऑटोमेटिकली उसी तरफ गिरेगी। अगर आप पीछे रखेंगे, आप स्टेडी रखेंगे, बैलेंस रखेंगे, वो जो जड्डू बात कर रहे हैं ना कि अगर आप सर सीधा रखेंगे तो आपका जो वेट है और जो बैलेंस है वो भी आपका दोनों पैरों पे रहेगा। जो ही आप जाएंगे ये आपका टो पे चला जाएगा, जो ही जरा सा पीछे जाएंगे तो आपका हील्स पे चला जाएगा। बॉलिंग में भी एग्जैक्टली ये है। आई नो आप ज़्यादातर देखते हैं कि जो बॉलर्स हैं वो जब बॉल करते हैं तो उनका सर इधर चला जाता है, क्या सर गिर जाता है ना, जिसको बोलते हैं कि सर और सर डिग पे है। वो जो सर गिरना मतलब कि आपका बॉल जो आपका ड्रिफ्ट करेगा, नीचे ड्रिफ्ट कर जाएगा। इसलिए कहते हैं कि बॉल सर को जितना सीधा रखें, सीधा रखा नहीं जाता वैसे। इट्स नॉट दैट इजी टू कीप द बैटिंग में शायद हो सकता है, बॉलिंग में इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप एक मोमेंटम और आप पूरा भाग के आ रहे हैं तो आपका सर सीधा रखना इतना आसान नहीं है। लेकिन क्या सॉरी टू रन अप शुरू से स्टिल आप भागते तो आप नॉर्मल है ना कि आप सीधा रखते हो, स्टिल रखते हो। आप जब अपने आप को उठाते हो, अब जो जंप जो भी जिसका ज्यादा जंप होता है कहीं, आप जब कोशिश करिए कि एट द टाइम ऑफ लैंडिंग आपका सर सीधा हो। उसके बाद आपका गैस वर्क होता है। आपने जो इतने एक्सपीरियंस या गैस वर्क होता है, मैंने एक बॉल फेंकना कहाँ है वो आपको जगह आइडिया होती है, आपको हाथों से पता होता है, आपकी बॉडी बताती है आपको। लेकिन जब आप डिलीवर कर रहे होते हैं उस टाइम तो सर नहीं सीधा होता, क्योंकि आपने जब जोर लगाते हैं तो सर ने किसी जगह जब जाना है, क्योंकि जोर आपको जो फोर्स है वो आपका सर को हिला रही है। लेकिन एट द टाइम ऑफ योर एक्शन व्हेन यू आर इन बैलेंस, जैसे जड्डू कह रहे हैं बैटिंग में बैलेंस में, आप बैटिंग भी जब करोगे ना, जब बॉल मारोगे तो सर आपका इधर उधर जाएगा, बट एट द टाइम ऑफ facing a ball or at the time of releasing the ball, just before that, make sure your head is straight. That's what I mean. All right, thank you so much. Yes, Nikhil, you want to add something, please? Yeah, pretty similar to even spin bowling. If you look at any spinner, finger spinner, as an off spinner, I can tell you also, अगर सर आपका बॉल डालते टाइम जो पाजी भी कह रहे हैं, अगर वो फाइन लाइन की तरफ चला गया तो आपका लेफ्ट शोल्डर वैसे अपने आप बंद हो जाएगा। जो नीचे वाला पाँव है ना वो फिर वो कैची बन जाता है। सो यू आर फोर्स्ड विद योर लेफ्ट शोल्डर पॉइंटिंग टुवर्ड मिडल एंड लेग स्टंप। उसके बाद आप राइट हैंडर को ऑफ स्टंप पे डालेंगे तो ये जब कंधा आपको खोलना पड़ेगा तो फिर आपका हाथ ऐसे ना चल के फिर वो अंडर कट आप स्टार्ट करने लग जाएंगे। एंड स्पिनर को लोअर बैक में तो कम, पर भाई अगर किसी का सर उधर जा रहा हो और नीचे वाला पाँव कैची बन रहा हो, उस फोर्स के साथ व्हेन यू आर अबाउट टू रिलीज फ्रॉम द क्रीज, your back will certainly start hitting you. Yeah, these are biomechanics of fast bowling. तो वो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये जो दो बेसिकली क्या होता है कि ये जो आपका अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन के बीच में एक गरारी है, क्योंकि अगर सादे लफ्जों में समझाऊं तो गरारी है। ये गरारी ऑपोजिट चलती है तो तब आप वो जो पेस है वो आप जनरेट कर सकते हैं। और वो कहते हैं ना कि जब ये जो कैंची की बात कर रहे हैं ना कि पैर अगर आपका एक ये पड़ा है और दूसरा क्रॉस पड़ेगा ना तो फिर ऑफ कोर्स आपको ये वाला जो टांग है हिप है जो इसको यूं घुमा के पूरा लाना पड़ेगा। और जब आप लाओगे तो फिर ये इतना लोड आप बैक पे भी, ग्रोइन पे भी, सब कुछ ये सब कुछ करते हैं। इसीलिए ज़्यादातर कोचेज जो हैं वो कोशिश करते हैं कि अलाइनमेंट ठीक हो, और इसको बोलते हैं अलाइनमेंट। आपकी अलाइनमेंट पैरों की, अगले पैर, मैं तो कहता हूँ साइडवेज पड़ना चाहिए, क्योंकि आपने पिवट करना होता है। साइडवेज पड़े और आपकी जो दोनों की पैरों की जो लाइन है ना वो एक होनी चाहिए। देन यू कैन पिवट, इट्स इजी टू सॉर्ट ऑफ रोटेट ओवर द टॉप एंड देन ऑफ कोर्स पेस ऑल्सो कम्स। जो ही आप यहाँ जाएंगे हो सकता है आप थोड़ी सी पेस ज़्यादा जनरेट कर लें, बट यू पुटिंग सो मच लोड ऑन योर बैक दैट यू नो
over the period of time, अगर आप ज़्यादा bowling give away. करेंगे, you'll get injured. Interesting conversation, Vakar. And I think what we're going to ask you and Nikhil to do in the post-match is to come and actually demonstrate that here on the pitch so that our people can get a better idea, all the youngsters can get a better idea. Rawalpindi, it's still a little wet. We don't know if we're going to have a game or a delayed game. We'll find out more about it. You're watching the DP World Dressing Room. We'll be back after this little short break. Paji, how's it? पकौड़े लाइए. And there you have it. Covers are being pulled. I am not sure if they're being pulled on or off, but oh my goodness me, look at that water. There is a lot. And It'll take some time because अगर इस पे पानी है तो obviously ground भी गीली होगी, puddles like you said बने होंगे. So अगर rain ना हुई तो maybe इनका an hour and plus start हो सकता है. Drainage system काफी बेहतर हो गया. I mean पहले कभी नहीं हुआ करता था, लेकिन drainage system अब काफी बेहतर. हाँ, बिल्कुल ही मेरा मतलब है कि pouring होगी तो then it's different. Otherwise I think ये इतनी जो बारिश हम देख रहे हैं, covers mainly square आपका covered है, तो I think that will not make much of a difference. थोड़ा बाहर थोड़ा. Before we go, I need to give one a message to Pakistani, my nation, my people, our people, कि पाकिस्तान अब नहीं है Champions Trophy में भी no. Unfortunate, but game में ये होता है. But Champions Trophy 30 साल बाद कोई इतना बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो रहा है. So please कोशिश कीजिएगा, बाकी टीमों को सपोर्ट करें. Go enjoy the cricket because बड़ी ज़बरदस्त टीमें पाकिस्तान में बैठी हैं. आज का मैच देख लें, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसी क्रिकेट यंगस्टर्स को लाइव देखने को नहीं मिलेगी. और Lahore did that. Lahore did that actually. We're really proud of that. Lahore, like a big appreciation for the crowd of Lahore. Lahore के लोगों के लिए बहुत सारी, I think they need to be appreciated that they were there and in numbers, you know, and And these are the players who will go back to their own countries and talk about what experience they had in your. Yeah, I mean place. Maxwell So if came they out have to a bat. better, so future is I brighter. think the first time he batted, it was the crowd gone berserk. Lahore वाले जब Maxwell आया है. Future is really bright like Wasim Bhai's glasses. I know. All If you thanks see to- through his lens. All thanks to Bhaji. Wow. Oh, wow. Ayush Sharma, I'm just sorry because I'm also monitoring our social media feed. course you and, one social media user called Wasim Akram not the best all-rounder in the dressing room. And let me show you why he was the best. Total wickets, 916, 512 ODIs, 414 tests. Total runs, 6,615, 2,898 tests and 3,717 in ODIs. 50s, 13, 100s, 3, which includes the double 100 in test matches. These numbers say it all. Thank you so much, Ayush Sharma, for sharing that. I really appreciate that. And another very important, you know, that's why I call you the GOAT. Okay, thank you for that. But कई लोगों और को मैं नहीं आपको अच्छा गोट कह रहा था लगता. तो बड़े अरसे तक लोग समझ रहे हो कि why do I call you the goat? बकरा थोड़ी लगते हैं. They thought that तुसी बकरी कह रहे हो. जिन लोगों को पता नहीं गोट का फुल फॉर्म ही बता देने. Greatest of all time. That's my goat. GOAT. Very few out there. Which dot पाला ना. Which takes me to Which dot पा के वरना बकरी बन जाता बंदा. That's a good point. And with that, another goat is butter chicken for me. And we just found out, Sapreet 65. This is what I love about our show. Is that people are watching, people are keeping an eye on everything. And when we ask something, like the Aqib Javed story you narrated, they shared the picture and they shared the video of the innings as well. That's like fantastic. And now Sapreet 65 has just sent to us that butter chicken, also called chicken makhani, believed to be originated in 1900s at a hotel named Moti Mahal in Delhi. Wow. So that's Moti Mahal कौन सा in वाला Delhi. हो? कहाँ पे है ये? मोती दिल्ली महल पे? डिलर पाजी एक चांदनी चौक में था, दरियागंज सॉरी, और देन उसका ऑफशूट साउथ दिल्ली में है. You know, जब पार्टीशन के टाइम की वक्त है, आई थिंक उस वक्त पे ये एरिया में एक होगा. अगर ये वही है तो ये स्टोरी वहाँ से शायद ओरिजिनेट की होगी. नेक्स्ट टाइम अगर जब आप एक आए और तो मोती चीज महल भी से बताइए. butter चांदनी chicken चौक लेते के पास आइएगा. मैं आपको चलिए यहीं शो पे खिलाता हूँ. उनकी शायद एक ऑफशूट दुबई में भी खुल गई है. लेकिन पहले पकौड़े दे ले आओ. आप उस पीरियड में एक और चीज है, ये रेस्टोरेंट्स की बात हो रही है. अच्छा guys, सुनो मेरे मुंह में आ रहा है बहुत ज्यादा पानी. We're going to take a break and we come back and I need to find some butter chicken. Excuse me.
Unfortunately, depressing images coming out of Rawalpindi. We're hoping for a game because it is the Champions Trophy and it is happening, an ICC event happening in Pakistan after 29 years. Unfortunate that the defending champions and the host team is out, which is Pakistan. But for the rest of the teams, we hope that they get full games here. There is a little bit of gap in the clouds, but I don't know if we're going to get any kind of break in there and hopefully get a game underway. But we're going to try to bring this game to you right here on 10 Sports Live and wherever you may be. Remember that in the post-match, we have your favorite and our favorite segment, which is hashtag Ask the Room. We will be back in the evening with the post-match, even if you don't have a match. So maybe we can have all your questions and answers with that. Gentlemen, thank you. Enjoy the rest of the day. We will be back after the game, or not the game, but see you in the evening.